Now students, come to the question number 9. The question number 9 is from exercise 1.2. The question number 9 is to stretches a shirt 2 meter 15 centimeter clothes is needed out of 40 meter clothes. So हमें बोला गया है कि हमारे पास टोटल क्लोथ्स कितना है, टोटल क्लोथ्स equals to 40 meter. Now we can also be write here 40 meter change into the centimeter. How much? 40 and 100 centimeter. It means here is 4000 meter total clothes here. And then come to the second statement is saying that how much? The second statement is saying that required clothes for one shirt. Required clothes for required clothes for one shirt. वन शर्ट के लिए कितनी की आवश्यकता होती है? 2 मीटर 15 सेंटीमीटर. हाउ मच? 2 मीटर 15 सेंटीमीटर. नाउ वी कैन आल्सो राइट 2 मीटर मींस 200 मीटर प्लस 15 सेंटीमीटर. मतलब क्या कि 2 मीटर को हम 200 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं. सो इट इज आल्सो कॉल्ड 215 सेंटीमीटर जो है एक शर्ट को बनाने के लिए यूज होता है. एंड द लास्ट द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट हाउ मेनी कैन बी स्टिचेस एंड हाउ मच क्लोथ्स विल बी रिमेन. तो कितनी शर्ट्स बन सकती हैं और कितनी रिमेन रहेंगी. तो हम क्या बोलेंगे? टोटल शर्ट इक्वल्स टू, टोटल शर्ट निकालने के लिए क्या करना होगा? एक शर्ट का अमाउंट पता है, टोटल क्लोथ्स पता है कि अगर मैं इस अमाउंट से इस वैल्यू को डिवाइड करूं, इसका मतलब क्या है कि हमें एक शर्ट का पता है और मैक्सिमाइज शर्ट का पता करना है. तो हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं. अंडरस्टूड? सो 4000 मीटर that is centimeter. 40 meter equals to 4000 centimeter and centimeter divided by how much? It is also be understand by the help of 40 multiply by 100. Why? क्योंकि एक सेंटीमीटर में 100 होते हैं तो मल्टीप्लाई करो तो 4000 सेंटीमीटर. सो डिवाइडेड बाय 215 सेंटीमीटर. So centimeter cancel out centimeter by dividing this in the rough work. Come here. Now after dividing 215 by the 4000 here, so 215 1 ja 215 and then how much remain? So 10 minus 5 is 5. 10 minus 9 minus is 8 and 3 minus 2 is 3 minus 2. 3 minus 2. 3 minus 2. 3 minus 2 is 1 and the 0 is here. 1815. So 215 divided by 1850. So how much remain? 2 8 ja 16, 2 9 ja 18 और 15 9 ja 120 हुआ. इसका मतलब हुआ 1800. So the answer will be how much? After dividing the 8, 258. The answer will be 208. 2 8 just 16. 215 multiply by 8. 8 5 is 40 carry 4. 8 1 is 8 and 8 4 12 carry 1 and then 8 plus 16 and 17. 1720. So 8 is how much? 1720. The remaining amount 0, 5, 2 and 3 and then 8 minus is 130. So 18 is remain. It means जो 18 शर्ट होंगे तो कंप्लीट बनेगी और 130 सेंटीमीटर क्या रहेगा? रिमेन. सो टोटल शर्ट इक्वल्स टू 18. टोटल शर्ट कितनी बनती है? 18. रिमेनिंग क्लोथ्स equals to how much? remaining clothes 130 centimeter. It means almost 1 meter 30 centimeter. क्योंकि हमको पता है कि 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है. So this 100 change into the 1 meter and 30 centimeter
remain. Now come to the question number 10. Pause the video to note it down. Now students, come to the question number 10. Question number 10 is saying medicines in a packed box. Each box's weight is 4 kg 500 gram. So weight of one box, एक बॉक्स का वेट हमको दिया गया है हाउ मच 4 kg, हाउ मच 4 kg 500 gram. Now it is also right 4 kg, it means 4000 gram plus 500 gram, it means it is equal to 4500 gram. So change into the gram. And when can we hold the weight, जो when है वो कितना weight hold कर सकती है 800 kg. Now it is changed into the gram, so it is 800 multiplied by 1000, then convert into the gram, so 8 lakh gram. So when can hold the weight? When can hold the weight? When can B hold the weight equals to 8 lakh gram. So now come to the actual finding of the answers. How many such boxes can be loaded? So number of boxes can be loaded. So number of boxes can be loaded. So student, इस बात को समझते हैं, टोटल वैन जो है इतना वेट को अपने ऊपर सह सकती है और एक बॉक्स का वेट कितना है 4500 ग्राम वेट. सो अब हम क्या करते हैं कि हमें नंबर ऑफ बॉक्सेस निकालने, तो इस वैन जितना वेट सह सकती है इस वैल्यू को डिवाइड करते हैं एक बॉक्स के कंटेनर वेट से. तो ये हो जाएगा एक बॉक्स का जितना भी वेट है, सो डिवाइडेड बाय 4500. दिस इज आल्सो इन ग्राम, कैंसिल आउट. So cancel out, now cut out from the 5, 5 1 ja 5, and then 5 6 ja 30 and 00 remaining, 5 9 ja 45, then 1600 divided by 9, then cancel out, 9 1 ja 9, then 7 9 7 ja 63 and 9 7 ja 63 point out something. So approximately we can say that 177 boxes can be well loaded into the well. So almost final answer is 177. Now pause the video to come in next question. Question number 11. Question number 11. Now students, come to the question number 11. The question number 11 is saying that total distance covered in a day is 1875. It means 1875 meter. It is also given that 1 kilometer 875 meter. कोई एक जो बच्चा है वो एक दिन की डिस्टेंस कितनी कवर करता है 1 किलोमीटर 875 मीटर. तो बच्चों इस क्वेश्चन में एक चीज और भी है कि एक स्टूडेंट जो है घर से स्कूल की ओर जाता है तो इतने डिस्टेंस कवर करता है, लेकिन अगर जब वो घर से स्कूल गया है तो स्कूल से वापस भी आएगा, तो इसका मतलब यही जो डिस्टेंस होगी वो 2 टाइम हो जाएगी इसी का. तो मैं इसी वैल्यू को क्या करूंगा 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा. तो 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 कैरी 1, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14 और 15 कैरी 1, 2 8 जा 16 and 17, 2 1 जा 23. इट मींस कि वो जो बच्चा है एक दिन में जाने और आने में टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करता है 3750. तो बच्चों याद रखिएगा कि एक बच्चा पहले क्या करता है कि पहले जो है अपने घर से होम टू स्कूल जाता है, देन स्कूल टू होम. तो पहली बार में इतनी डिस्टेंस है तो 2 टाइम में कितनी हो जाएगी 3750 मीटर. एंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 6 डेज. अब हमें बोलता है कि टोटल डिस्टेंस निकालिए 6 डेज की. टोटल डिस्टेंस कवर इन 6 डेज. अब स्टूडेंट्स यहाँ देखिएगा, अब मैं क्या करता हूँ 3750
मल्टीप्लाई करता हूँ। नाउ द क्वेश्चन इज अराइजिंग कि हमने मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि आप ये बात को याद रख लीजिए कि जब हमें किसी एक दिन का डाटा या कोई एक सिंगल डाटा हो, एक दिन का डाटा दिया गया है और 6 का मतलब ज्यादा का निकालना हो, लेस का दिया हो और मोर का निकालना हो, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। लेस का दिया हो और मोर का निकालना हो तो मल्टीप्लाई करते हैं। और अगर प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 10 में जाएं तो हम वहां देखते हैं कि हमने डिवाइड किया। क्यों? क्योंकि वहां हमें ज्यादा का दिया था और एक का निकालना था, तो एक का दिया हो ज्यादा का निकालना है मल्टीप्लाई, और ज्यादा का दिया हो एक का निकालना है तो हम क्या करेंगे? डिवाइड। तो आते हैं, तो यहाँ हमें एक का दिया, ज्यादा का निकालना, 6 0 0, 6 5 30 कैरी 3, 6 7 42, 5 कैरी 4, 6 3 18 and 22. So this is in meter, and then come to the 22 kilometer and 500 meter. Understood? Now come to the next question number 12. Now students, come to the question number 12. The question number 12 is saying that a vessel has 4 liter and 500 meter of 4 liter and 500 ml of curd. So total curd equals to total curd equals to 4 liter and 500 ml. So it will change into the liter, that is called also 4.5 liter. After converting हम इसको कह सकते हैं 4 लीटर 500 मीटर मीन्स 4.5 जो है लीटर हमारे पास क्या है? कर्ड है। एंड देन इन हाउ मेनी ग्लासेस, ईच ग्लास कैपेसिटी 25 ml। तो हमें बोला गया है दैट इज आल्सो कॉल्ड, अगर हम इसे ml में कन्वर्ट कर लें तो हम इसे कहेंगे 4500 ml भी कह सकते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अब हमें बोला गया है कि ईच ग्लास कैपेसिटी, ईच ग्लास कैपेसिटी इक्वल्स टू, तो एक ग्लास की कैपेसिटी है 25 ml। सो नंबर ऑफ ग्लासेस कैन बी फिल्ड, नंबर ऑफ ग्लासेस कैन बी फिल इक्वल्स टू, कितने नंबर ग्लास, कितने ग्लास फिल हो सकते हैं? सो अभी मैंने बोला था कि जब हमें एक का दिया हो और ज्यादा का निकालना है। अब यहाँ क्या है देखिए, हमें जो है किसी एक की वैल्यू निकालनी है और ज्यादा की वैल्यू भी दी है, तो नंबर ऑफ ग्लासेस फाइंड करने हैं एक को देने के बाद, तो हम क्या करेंगे 4500 डिवाइडेड बाय 25, यहाँ भी ml और यहाँ भी ml, देन कैंसिल आउट। अब ग्लासेस निकालते हैं, नंबर ऑफ ग्लासेस निकालें तो कैंसिल आउट करते हैं, 100 8 10। So now the finally 180 glasses can be filled after the fill up the capacity about one glass is 25 ml. Now the